Good morning, students. In our today class, we'll discuss chapter number 5 in geography, elements of weather and climate. In our daily conversation, we often discuss a cold morning, a windy day, a cloudy sky, a sweltered afternoon, or a warm evening. All these refers to the weather condition of a particular place at a particular time. स्टूडेंट इन आर डेली कॉन्वर्सेशन, हम डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ डिस्कस करते हैं कि टुडे कोल्ड मॉर्निंग, आज बहुत कोल्ड मॉर्निंग थी, विंडी डे है या क्लाउडी स्काई है, हॉट डे है. तो दीज आर द कॉमनली टर्म्स विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ. दीज वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, दीज वर्ड रेफर्स टू द वेदर कंडीशन. जो हम बात करते हैं ये हमारी वेदर कंडीशन शो करती हैं. नाउ व्हाट इज़ वेदर कंडीशन? वेदर कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर time. Now before we start the chapter, let's have a quick glance on the things which we will discuss in this chapter. About the difference between weather and climate. About temperature of atmosphere. About atmospheric pressure. About permanent pressure belts. About type of winds. Humidity in the air. And different forms of condensation and precipitation. These are the important things which we will discuss. Now come to the chapter. Weather and climate are at the very center of our existence. They influence our ways of life, the clothes we wear, the food we eat, the house we live in, the crops we grow, and so on. Now two words are there, weather and climate. These two weathers influence our life. ये दोनों words हमारी life को बहुत ज़्यादा influence करते हैं and they influence our life in different ways. अलग अलग तरीक़ों से हमारी life को प्रभावित करते हैं. The clothes we wear, जो कपड़े हम पहनते हैं, the food we eat, the house, the crops, and different things are influenced by weather and climate of that area. Now, what is the difference between weather and climate? First, we'll discuss about the weather. Weather is the condition of atmosphere at a particular place over a short period of time. Now weather क्या है? Weather is the condition of atmospheric condition. किसी भी एरिया की atmospheric condition जो particular place में एक short period के लिए रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है, वो वहाँ का weather होता है. It is not constant. Weather constant नहीं होता है. It keeps on changing daily or twice in a day. Weather जो है वो keep on changing, लगातार change होता है. It may change day by day or within same day itself. कई बार weather day by day change होता है, daily weather change होता है, या फिर दिन में एक या दो बार भी हो सकता है. जैसे सुबह बहुत धूप रहती है, अचानक से बादल आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, रेनफॉल होती है, देन वेदर चेंजेस एंड कोल्ड इज देयर. तो इस तरह से वेदर क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की वो कंडीशंस हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वो वेदर कंडीशंस हैं जो एक लार्ज एरिया को कवर करती हैं और लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं. वेदर शॉर्ट पीरियड तक रहता है और क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड तक, इट मे बी अप टू 35 to 40 ईयर्स. लंबे समय तक एक जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक जैसी वेदर कंडीशन जो रहती हैं, उसे हम वहाँ का क्लाइमेट मानते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज परमानेंट. जैसे वेदर तो शॉर्ट पीरियड चेंज होता है, पर क्लाइमेट होता है जो परमानेंट एंड डज नॉट कीप ऑन चेंजिंग. वो कभी भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है. क्लियर? नाउ अ बॉक्स इज गिवन देयर. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर एज फॉलोज. सम एलिमेंट्स आर देयर विच affect the climate or weather. First one is temperature, pressure, winds, humidity, precipitation, sunshine and cloud cover. These are the elements of weather and climate. Now first, temperature of the atmosphere. The temperature of the atmosphere can be defined as a degree of hotness or coolness of air. Now temperature. Temperature हम क्या कहते हैं कि क्या है temperature? What is temperature?
टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसे हम डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेयर की हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ इन एयर, की हवा में कितनी हॉट है कितनी कोल्डनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, अब हम एयर में टेम्परेचर को कैसे नापते हैं? द इंस्ट्रूमेंट इज देयर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। What is thermometer? Thermometer is an instrument which is used to measure the temperature in air. The temperature of air is measured in degree. और temperature of air किस में measure किया जाता है? It is measured in degrees. The most common thermometer scales are the Fahrenheit and the Celsius or centigrade. कि most common thermometer scale जो हम use करते हैं that is Fahrenheit, Celsius or centigrade. The sun is the main source of heat and light on the earth. The heat energy radiated from the sun is known as solar radiation. कि sun, as you know student, कि earth पे main source of light sun है and the heat energy radiates that is known as solar radiation. और जो sun से हमें radiation मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? Solar radiations. The earth is very small compared to the sun and is 150 million kilometers away from it. Therefore, receive only 1-2 billionth part of the total radiation of the sun. As you all know, Earth is very small compared to sun. Earth जो है sun के comparison में बहुत छोटी है और काफ़ी distance पे है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो सन की जो लाइट है, हीट है, उसका ओनली 2 बिलियन पार्ट ही हम रिसीव कर पाते हैं टोटल में से। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। और वो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो हम रिसीव कर रहे हैं, अर्थ रिसीव करती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रीच द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज ऑफ डे लाइट। अब जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, इंसोलेशन जो हम रिसीव करते हैं, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। एक तो इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, कि सन रेज का इंक्लिनेशन क्या है, एंड सेकेंड वन इज द ड्यूरेशन ऑफ डे। इट वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो विद द टाइम ऑफ द ईयर। कि ड्यूरेशन ऑफ द डे एज यू नो इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ड्यूरेशन डे का डिफरेंस होता है। तो जो इंसोलेशन का रिसीव अमाउंट है वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे डिफरेंट होता है, वेरी करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। कि टोटल अर्थ को, जो पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, उसको 3 हीट जोन में हमने डिवाइड किया है। और किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है? अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव, कि जितनी हम हीट रिसीव करते हैं सन से उसके अकॉर्डिंग 3 हीट जोन्स हैं। दीज आर टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। Look at the diagram of the heat zone and note their boundaries. The torrid zone receives the vertical sun rays and so it is the hottest zone, while the frigid zone are the coldest as they receive extremely slanting rays of the sun. The temperate zone are neither too hot nor too cold. Now I am explaining this zone with the help of a diagram which is given there. Heat zone of the earth. Now as you can see, 0 degree, as you all know, 0 degree shows the equator. Equator से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. This is the area which is light peach color. This is the area of torrid zone. ये torrid zone है and this is the hottest zone. The country which come in this zone are the hottest country in the world. ये hottest country है दुनिया के जो torrid zone में आते हैं because sun rays यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल सन रेज आती हैं और इसलिए पूरी डायरेक्ट सन रेज रिसीव करता है एरिया और इसलिए सबसे हॉटेस्ट जोन माना जाता है टॉरिड जोन. नाउ कम टू द एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ.
दिस इज द एरिया ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो स्टूडेंट है, द एरिया विच इन द टेम्परेट जोन, जो कंट्रीज टेम्परेट जोन में आते हैं, दीज कंट्रीज आर नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। नाउ लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इज द एरिया ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ to 90 degree north pole and 66.5 degrees to south pole 90 degree. This is the area of frigid zone, and frigid zone is the coldest area of the world. The country which lie in this zone, कि इस zone में जो countries आते हैं, they are the coldest countries या coldest areas of the world. Clear student? Now, factors controlling temperature. The temperature of the atmosphere is not the same everywhere. It largely depends upon the amount of insolation received by a particular place. कि हर जगह में, हर जगह का एरिया वर्ल्ड में टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द सन रेज रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया। द वेरियस फैक्टर विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोज, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर सम वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज लेटीट्यूड। फर्स्ट वन, latitude, the equator and the region near the receive vertical rays of the sun. As we move away from the equator towards the pole, due to the curvature of the earth, the sun rays become more and more slanting. Places near the equator have high temperature and the temperature goes on decreasing from the equator towards the pole. Now students, की जो equator है, as you know equator is 0 degree and the area which are near the equator receive direct sun rays. जो areas equator के आसपास होते हैं वो direct sun rays receive करते हैं, इसलिए ये hottest area माने जाते हैं। और as we move towards the pole, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, सनरेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग होती जाती हैं और स्लैंटिंग होने के कारण उनका जो हीट टेम्परेचर है वहाँ डिक्रीज़ होता है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हॉट होता है और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में, हायर लेटीट्यूड पे जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की साइड, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। एल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन बट इनडायरेक्टली बाय द हीट ऑफ द अर्थ। नाउ द एटमॉस्फेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन, कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो डायरेक्टली जो सन रेज से हीट नहीं होता, इनडायरेक्टली बाय द हीट ऑफ द अर्थ, वो इनडायरेक्टली गर्म होता है बाय द हीट ऑफ द अर्थ। Close to the Earth's surface, the layers of the air are dense and they also contain a lot of water vapor and dust particles which absorb the heat. The area is near the Earth's surface, कि वो area जो near the Earth's surface है, जो air है वो वहाँ अर्थ सरफेस के आसपास जो एयर होती है वो डेंस होती है, घनी होती है, एंड दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर वेपर, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। एज वी मूव ऑन हायर एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, लेयर ऑफ एयर बिकम थिनर, तो एयर की जो लेयर है वो थिनर होती जाती है, पतली होती जाती है, और कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, और उसमें अमाउंट वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी लेस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और इसीलिए वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इसीलिए जब जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है हायर एल्टीट्यूड पे। दिस एक्सप्लेन्स वाई द हिल स्टेशन आर कोल्डर देन द प्लेन एरिया। ये हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो ऊंची पहाड़ियों पे स्थान है, जगह है, वो कंपेयर टू प्लेन्स, मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे पाए जाते हैं, क्योंकि
जो एरियाज़ मैदानों में है वहाँ पे डेंस एयर है और वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो एरिया गर्म होते हैं। और जैसे जैसे हम हाइट पर, ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, वहाँ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल कम है, इसीलिए एयर हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसीलिए वो एरिया ठंडे रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Land is heated up and cools down faster than the sea. This you all know student कि land जो है, ज़मीन जो है, वो get heated up and cool down faster than the sea. Compared to sea, अगर हम land को compare करते हैं sea से, तो land जल्दी गर्म होता है and cools down faster, और जल्दी ही ठंडा हो जाता है compared to sea. During the day, the land is warmer than the sea. अगर हम दिन में देखते हैं तो लैंड जो होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है कंपैरिजन टू सी। द हॉट एयर ओवर द लैंड बिकेम्स लाइटर एंड राइजेस एंड कूल एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। अब हॉट एयर ओवर द लैंड, अब लैंड जब गर्म होती है दिन में, तो लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, हैवी होती है। तो जब दिन के समय में लैंड गर्म होती है तो लैंड के ऊपर की हवा लाइटर होती है। लाइट चीज़ हमेशा राइज अप होती है, वो ऊपर उठ जाती है, और जो समुद्र से, जो समुद्र में जो उस समय क्या है, कोल्ड एयर है, वो उसकी जगह आकर ले लेती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रीज। एट द नाइट, अब हमने नाइट में देखते हैं, द नाइट सी इज वार्मर देन लैंड, और जैसे ही नाइट होती है कि सी जो है, वो समुद्र जो है वो वार्मर रहता है कंपैरिजन टू लैंड। लैंड तो जल्दी ठंडी हो जाती है और सी गर्म रहता है। अब ये सेम प्रोसेस होता है, जो सी के ऊपर हवा है वो गर्म है और वो लाइटर है, वो हल्की होती है और वो राइज अप ऊपर की तरफ उठती है, और उसकी जगह कौन सी हवा लेती है, द प्लेस टेकन बाय द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। अब ज़मीन जो है वो ठंडी हो गई है, तो ज़मीन से जो कूल एयर है वो समुद्र के ऊपर की हवा की स्पेस लेती है, और उसको कहते हैं हम लैंड ब्रीज। लैंड and sea breeze have the moderating influence on the temperature of the coastal areas, and so they have time on the oceanic climate। कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होती हैं वो टेम्परेचर को मॉडरेट करने में, यानी मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट, द एरिया विच लाई नियर द कोस्टल एरियाज आर हैविंग द मॉडरेट टेम्परेचर। इसीलिए वो एरियाज जो समुद्र के आसपास होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। द प्लेसेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर and thus experience continental climate। And as we move to far away from the sea, जो एरिया सी से जितने ज़्यादा दूरी पर होंगे वहाँ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स too hot in summer and too cold in winter। Now move to next point, winds। Winds blowing from warmer areas rises the temperature of a place over which they blow, while winds blowing from the colder area lower the temperature। This is a simple thing। winds blowing from warmer area, कि वो winds जो warmer area से blow कर रही हैं, warmer area से चल रही हैं, वो जहाँ भी जाएंगी उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। while the winds blowing from cold area, और जो ठंडी हवाएं कोल्ड एरिया से आती हैं वो जिस तरफ जाती हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं। Oceanic currents। Warm ocean currents increase the temperature of the near coastal areas, while cold ocean current decreases the temperature। Now this is the simplest one। अगर warm ocean current है तो वो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जो कोल्ड ओशन करंट है वो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। रिलीफ, स्लोप ऑफ द लैंड, clouds, soil and vegetation cover are the other factors which influence the temperature of a place। Atmospheric pressure। Air exerts pressure on everything on which Earth's surface।
एज यू नो स्टूडेंट, एयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एयर हर अर्थ पे जो भी चीज़ होती है उस पर प्रेशर फोर्स डालती है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर. एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, देयर आर लेयर्स, डिफरेंट लेयर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में अलग अलग 5 लेयर्स हैं और एक लोअर लेयर के ऊपर देन अपर लेयर इज देयर. Atmospheric pressure can be defined as a force exerted by a column of air due to the weight at a particular place on the Earth's surface. Now, atmospheric pressure हम किसको कहेंगे? Atmospheric pressure is the pressure which is exerted by the air. कि एयर के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है, जो दबाव डाला जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ सरफेस के, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. And an instrument is used to measure atmospheric pressure is called barometer. और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हवा के प्रेशर को, दबाव को नापते हैं कि इस एरिया में हवा का प्रेशर कितना है, कितनी रफ्तार है, दबाव कितना है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर. द यूनिट इन विच एयर प्रेशर इज मेजर्ड इज कॉल्ड मिलीबार्स. और वो यूनिट जिसमें हम इसको मेजर करते हैं दैट इज नोन एज मिलीबार्स. देयर आर 2 काइंड ऑफ बैरोमीटर्स, mercury barometer and Android barometer. Now that's all in our class, today's class student. We'll continue our chapter in our next class. Till then, goodbye and thank you.